Hello my dear students, myself Pushpendra Bhardwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about consumer equilibrium concept or consumer equilibrium. In this topic we will discuss marginal utility analysis and consumer equilibrium एंड सिंगल कमोडिटी एंड टू कमोडिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज. तो फर्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation of maximum satisfaction while he is spending his given income across different goods. In other words, a consumer is in equilibrium when he allocates his given income to the purchase of different goods in a manner such that his total satisfaction is maximized, and any change in the allocation of income under the given circumstances will only lead to a fall in total satisfaction or total utility. The consumer is in equilibrium when given his income and market prices. He plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स जब एक कंज्यूमर का जो टोटल इनकम है उसका एक्सपेंडिचर इस तरीके से किया जाए कि उस जो भी जिस चीज़ के ऊपर किया जा रहा है, जैसे कोई भी कमोडिटी है उस कमोडिटी के ऊपर इस टाइप से उसका एक्सपेंडिचर किया जाए, एक्सपेंड किया जाए उस पैसे को कि उससे उस चीज़ से जो कमोडिटी है उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हो वो कस्टमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो. इसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे. अभी नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ वी आर एड्रेसिंग द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ this chapter. How much of a commodity a consumer buys so that he maximize his satisfaction and attains the points of equilibrium. This is discussed with reference to two different situations. First is when only one commodity is consumed and when two or more commodities are consumed. First is consumer equilibrium when one commodity in a one commodity case. Purchase of a commodity by a consumer depends on three factors: price of the commodity, marginal utility of the commodity and marginal utility of money. प्राइस ऑफ कमोडिटी हमने डिस्कस कर सकते हैं. प्राइस कमोडिटी की प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर हमने TU और MU का जो रिलेशनशिप पढ़ा था उसमें देख लिया है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ ए रूपी. To a consumer, what is worth of a rupee? The consumer is expected to define it himself. It is assumed that he defines it in terms of utility that he derives from a standard basket of goods he can buy with a rupee. Example, if a rupee can buy 100 gram of sugar, 500 gram of rice and 500 gram of salt, which represent a standard basket of a good to the consumer, and its total utility from these goods, if it is say 4 utils, then 4 is to be taken as marginal utility of money. This becomes his standard reference whenever he is buying any commodity. Buying a unit of commodity X for a rupees would mean the consumer expects 4 units of utility from the consumption of commodity X. Thus, MUs become a measuring rod for a rupee worth of satisfaction. It is assumed that MUM is constant simply because it is a meaning rod for a rupee worth of satisfaction. देखो जब एक कोई रुपी है उसमें 100 ग्राम शुगर खरीद रहे हैं हम, 500 ग्राम राइस, 500 ग्राम साल्ट, तो इन सब का एक बास्केट बना लिया जाए तो उसमें 4 यूटिल्स कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो उस रुपी के लिए जो सेट MU होगी, MUM, वो 4 यूटिल्स ही होगी. तो उसको टोटल. नेक्स्ट इज, मैं अगर एग्जाम बात करूँ कोई भी,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शेड्यूल ऑफ एक्स इज टेकन एज यू फॉलो। ये मैं टेबल दिखाता हूँ एक आपको, जिसमें पी एक्स इक्वल टू 4 पर यूनिट्स है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है एम यू एम फॉर द कंज्यूमर फॉर यूटिल्स रेफरिंग टू द यूटिलिटी ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव व्हेन ही स्पेंड 1 रुपीज़। 1 यूनिट्स पे एम यू 20 है, 2 पे 18 है, 3 पे 16, 4 पे 10 और 5 पे 0 और 6 पे -5। तो एम यू एम की बात करें हम तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 एम यू इन टर्म ऑफ रुपीज़ वैन 4 यूटिल्स इक्वल टू 1। तो 5 18 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4.5, 16 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 4। तो ये बात हो गई है, ये इस तरीके से निकलेगा सब। तो नाउ बिकम्स द बेसिक क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एक्स द कंज्यूमर द विल परचेज टू बी स्टेट टू एक्विलिब्रियम टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, विल ही बाय 1 यूनिट्स ऑफ एक्स। यस, वो खरीदेगा, यस, बिकॉज एम यू एक्स इक्वल टू 20 यूटिल्स वर्थ रुपीज़ 5 वाइल पी एक्स इक्वल टू 4। उसको एक्सपेक्टेशन से 4 रुपये में ये चीज़ें आ रही है, बल्कि उसको 5 रुपये की चीज़ें मिल रही है। जो 4 रुपये में जो चीज़ें खरीद रहा था और उसको 1 रुपये का इसमें सरप्लस हो रहा है। जब तक जो वो चीज़ें, जब तक यूनिट्स को तब तक परचेज करेगा जब तक कि उसके 4 रुपये के बराबर तक जो चीज़ें आएंगी, नीचे ही जाते उसका वो परचेजिंग रोक देगा, परचेज नहीं करेगा। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो एम यू एक्स डायग्राम आप जब ई नोट्स देखेंगे तो आपको सब मिलेगा उसमें। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एम यू एक्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो एम यू एक्स है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि घटती हुई है धीरे। कर्व showing that mu is declining as consumption of x increase. Px indicates market price of commodity x. It is fixed for the consumer and it is taken to be equal for. प्राइस फिक्स है, 4 रुपये के है, 4 रुपये से ऊपर जो चीज़ें होंगी उन सबको खरीदेगा, नीचे वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। Each points of MUX serve so the MUX terms of money, it indicate the price that the consumer is willing to pay for each successive unit of the commodity. Equilibrium is struck at point C when the price he is willing to pay is exactly equal the price he actually pay. In a state of equilibrium the consumer buys 3 units of commodity. 3 यूनिट्स पे जो इक्विलिब्रियम होगा, इससे नीचे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा 3 यूनिट्स पे होगा, इससे नीचे नहीं होगा, क्योंकि बाद में 3.5 रुपीज़ के अराउंड जो चीज़ें हैं वो आ जाती है। जो यूटिल्स होती है वो 3 के आसपास आ जाती है, तो 4 से वो यूटिल्स को 4 से नीचे जाने ही नहीं देगा, 4 तक ही रखेगा। तो जो इक्विलिब्रियम होगा 3 यूनिट्स पे होगा और सी पॉइंट पे होगा। So long as the price he is willing to pay is greater than the price he actually pay, the consumer makes a gain which is called consumer surplus. मैंने बात की थी कंज्यूमर सरप्लस होगा वो, जो भी चीज़ एक कमोडिटी से ऊपर, जो भी प्राइस फिक्स कर रखी है उससे जो ऊपर है वो सारी चीज़ें सरप्लस होगी। 20 डिवाइडेड बाई 4 की याद इट्स मीन्स 5 रुपीज़, तो 5 माइनस 4 1 रुपीज़ सरप्लस। तो ये बात की हमने सिंगल कमोडिटी की। अब मैं बात करूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 2 कमोडिटीज और सेवरल कमोडिटीज केस। पहले हम सिंगल की बात करते हैं, एक छोटी सी बात और रह गई है इसमें। अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस। अब 1 कमोडिटी केस जो MUM निकलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो वो निकालने का फॉर्मूला आपको बता दूँ, MUX डिवाइडेड बाय PX जो होगा। जैसे मैंने 20 यूनिट्स MUX थी अपनी और PX अपनी थी 4 रुपीज़, तो डिवाइडेड बाय 4 की अब 20 को, तो 5 रुपीज़ आए थे अपने, तो ये MUM था। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बात हो गई। अब बात करें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटीज इन सेवरल कमोडिटीज केस। Consider a situation when a consumer is buying commodities X and Y with his given income. How will he strike his equilibrium? In case of any one commodity, say commodity X, a consumer strike his equilibrium when
एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू एम। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये एक्स कमोडिटी की बात होगी। अगर मैं वाई कमोडिटी की बात करूँ तो एम यू एक्स वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इक्वल टू एम यू एम, ये वाई कमोडिटी। अब दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को, टू कमोडिटीज़ की बात करें तो इन दोनों को हम मिक्स कर दिए जाएंगे, दो इक्वेशन को। Relating equation 1 and 2 and consider is situation when a consumer buy both commodities x and y, when we can state his equilibrium in the as in the following equation। जो इक्वेशन, जो एक्विलिब्रियम होगा टू कमोडिटीज़ का, वो होगा एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू एम वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इक्वल टू एम यू एम। इसको अगर टू कमोडिटीज़ है, इसी तरीके से अगर थ्री कमोडिटीज़ की बात किया जाए, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इक्वल टू एम यू जेड डिवाइडेड बाई पी जेड इक्वल टू एम यू एम। थ्री कमोडिटीज़ की हो जाएगी, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एन नंबर ऑफ कमोडिटीज़, जो हम कमोडिटीज़ का फिक्स नहीं है तो एन नंबर कमोडिटीज़ की बात करें, कमोडिटीज इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एन नंबर ऑफ कमोडिटीज़ वुड बी एज नंबर एम यू एम वन पी वन इक्वल टू पी एम यू टू डिवाइडेड बाई पी टू इक्वल टू एम यू थ्री इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो एम यू एनथ डिवाइडेड बाई पी एनथ इक्वल टू एम यू एम। तो मैं इक्वेशन के अब आपको एक टेबल के थ्रू समझाता है आपकी इक्वेशन को। देखो, एक्स की यूनिट है, एक्स यूनिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी है 1 2 3 4 5। तो 1 यूनिट पे एम यू एक्स है 25, 2 पे है 20, 3 पे है 15 और 4 पे है 10 और 5 पे है 0। और एम यू वाई है 1 पे 30, 2 पे 26, 3 पे 15 और 4 पे 2 और 5 पे 0। और अजम्पशन पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू 1 रुपीज़ पर यूनिट्स की बात कर रहा हूँ 1। Let's us assume that the consumer has fixed 6 rupees to spend across goods x and y। x और y को 6 rupees एक्सपेंड कर रहा है। He will expend 1 rupees on goods by getting 30 utils of utility second rupees। ये इस तरीके से बात हो रही है। एंड फाइनली 6 rupees of goods x और goods y again getting 15 utils of utility। 10 टोटल यूटिलिटीज़ मैक्सिमाइज 30 प्लस 26 25 20 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल टू 131। 6 रुपीज़ है तो 6 रुपीज़ 20 पे 30 पे 20 26 15 और 15, ये 6 यूनिट्स उन्होंने 131 यूटिल्स हो गई अपने पास। नो अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई विल ऑफर द कंज्यूमर हायर देन 131 यूटिल्स ऑफ द utility when he is spending 6 rupees on the purchase of goods x and y। Thus consumer strike his equilibrium when total satisfaction is maximized। It occur when MUX equal to MUY or when the rupees worth satisfaction the same across goods x y। जो 6 रुपीज़ है, 6 रुपीज़ में हमें मैक्स जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। तो हमें पहली यूनिट खरीद ली हमने 1 रुपये में, 2 यूनिट खरीद लिए, 3 खरीद ली, 6, इसी तरीके से 6 यूनिट्स खरीदेंगे जो सबसे हायर, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगी। तो हमने 30 25 26 20 15 और 15 इसको ख़रीदा था, तो 131। मैं इसको अगर ग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करें अपन, ग्राफ नंबर 4 देखेंगे आप, ई नोट्स में जब देखेंगे तो फिगर नंबर 4 देखेंगे। तो बात करें हम अब द इक्विलिब्रियम इज स्ट्राइक एट पॉइंट आर। दो जो एम यू एक्स और एम यू वाई की जो इक्वेशन थी वो दोनों आर नंबर के पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को स्ट्रक करेंगी। वेयर एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ही इज बाइंग 8 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 12 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। तो कमोडिटी एक्स 12 ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की, और कमोडिटी 8 कमोडिटी यूनिट्स ले रहे हैं एक्स कमोडिटी की। सिंस पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू 1 पर यूनिट्स द कंज्यूमर इन हिज पर्टिकुलर केस इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्पेंड 20 ऑन द परचेज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई।
तो ये बात हो गया, हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना है कहाँ किया हमने, जब पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5-6 यूनिट खरीदनी है तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 131 होगा। ये एम यू एक्स इक्वल टू पी एम यू वाई इक्वल हो जाएंगे। ये पॉइंट जो इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, एक ग्राफ बनेंगे दो, एम यू एक्स का अलग, एम यू वाई का, वाई गुड्स का अलग और एक्स गुड्स का अलग। तो दोनों को अपन मिक्स करेंगे कमोडिटीज़ का, एम यू एम को। तो ये जब एम यू दोनों इक्वेशन सेम होंगी तो उस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा आर। इसी तरीके से एक और अगर हम एक और वो लेना चाहें एग्जाम्पल तो ले सकते हैं। देखो एक्स कम यूनिट्स है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एम यू एक्स है 18 88 72 64 56 ऐसे 8 तक है। और एम यू वाई है 40 36 24 20 16 और 12। इक्वेशन चाहिए हमें एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बराबर पी ए वाई। तो हमें चाहिए एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स पी वाई। तो बात करेंगे दोनों इक्वल चाहिए हमें, कहाँ होंगी इक्वल, 10 यूनिट्स तो एम यू एक्स की खरीदी जाएगी और 7 यूनिट्स होंगी वो एम यू वाई की खरीदी जाएंगी। देखो 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1। इट्स अकर व्हेन सतीश परचेज 8 यूनिट्स ऑफ एक्स spending 8 into 8 equal to 64 and 3 units of y spending 3 into 8 equal to 24. Consider combination x y, x equal to 6 y equal to 1. Here also mux equal to my, but is not an equilibrium point because here all income is not spent. जो टोटल जो इनकम थी 88 रुपीज़ थी, मीन्स 64 जो उसके आएगा तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो मैं बात करूँ अगली, कंसीडर कॉम्बिनेशन एक्स वाई इक्वल टू इज नॉट इक्वल इन बिकॉज इनकम इज़ नॉट स्पेंड 48 रुपीज़ 6 इंटू 8 48 प्लस 8 1 इंटू 8 56 रुपीज़ ही खर्च हो रहे हैं उसके। Further, when x equal to 9 and 5 equal to y equal to 5, again mux and my what is not affordable as the exact consumer budget. 9 into 8 equal to 72 plus 5 into 8 equal to 40 means equal to 112। ये हमारे जो बजट से ज़्यादा हो गए, हमें बजट के अंदर ही चाहिए। बजट के अंदर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिएगा हमें वो बजट के अंदर ही चाहिए। हमें हमारे पास 88 रुपीज़ है, सतीश है, वो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग सतीश है, सतीश के पास 88 रुपीज़ है, 88 से ज़्यादा की चीज़ें वो यूनिट्स नहीं खरीद सकता। तो हमने बात की है 1 कम्युनिटी एंड 2 कम्युनिटीज इक्विलिब्रियम की। इसको ब्रीफली अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। 1 कम्युनिटी केस, rupees worth of marginal utility actually received by the consumer is equal to marginal utility of money as specified by the consumer himself, mux divided by px equal to mum. It simply means that the rupees worth of mu actually received is exactly equal to the rupee worth of satisfaction as desired by the consumer. Marginal utility of money remains constant as it is a measuring rod of rupees worth of satisfaction. Law of diminishing marginal utility holds good in case mu tend to rise, consumption of a commodity will never reach an end, equilibrium will never be stuck. तो ये कंडीशंस है 1 कमोडिटी की। सेकंड कमोडिटी की है रुपी। ये जो फॉर्मूला जो होना इक्विलिब्रियम होगा एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इक्विलिब्रियम इक्वल टू एम यू एम। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड गुड्स। ये कंडीशंस थी। अब बात होगी है, तो ये हमने आज यूटिलिटी के ऊपर जो डिस्कशन किया, इससे पहले वाले चैप्टर में कंसेप्ट यूटिलिटी एंड टी यू एम यू का वो पढ़ा, और
अब और लॉ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी अपन ने, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो टू कम्युनिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके कुछ अदर नाम से है, देखो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन भी कहते हैं, क्योंकि जो गॉसेन का दूसरा रूल लॉ था ये, इसलिए वजह से इसे सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन कहते हैं। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशंस कहते हैं, क्योंकि एक चीज़ को दूसरे सब्सटीट्यूट कर रहा है वो। इस तरीके से 2-3 नाम है इसके, और हमने 1 कम्युनिटी 2 कम्युनिटी सारी चीज़ें पढ़ी है। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।